بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آغاز میں آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے۔ اجلاس میں ملکی تاریخ کی پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی منظوری لی جائے گی۔ افغان صورتحال اور قومی سلامتی کے دیگر معاملات بھی زیر غور۔ اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید، وفاقی وزیر برائے اطلاعات فواد چودھری، موعد یوسف اور دیگر سینئر وزراء اور عسکری حکام شریک ہیں۔ سپریم کورٹ کا کراچی میں عسکری پارک 2 ہفتے میں KMC کو واپس دینے کا حکم۔ پارک کی حدود میں قائم شادی ہال اور دکانیں مسمار کرنے کی ہدایت کر دی۔ نسلہ ٹاور گرانے میں مداخلت پر سپریم کورٹ نے DG SBCA کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا۔ توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کر دیا۔ نسلہ ٹاور کو فوری طور پر عدالتی تحویل میں لینے کا حکم دیتے ہوئے کمشنر کراچی کو 15 روز میں عمارت مکمل طور پر مسمار کرنے کی ہدایت کر دی۔ سپریم کورٹ نے کراچی میں عسکری پارک واپس KMC کو دینے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے کراچی رجسٹری میں کیس کی سماعت میں حکم دیا، جھولے فوج کو واپس کر کے KMC اپنے جھولے لگائے۔ پارک کی حدود میں قائم شادی ہال اور دکانیں بھی مسمار کی جائیں۔ KMC کو پارک بحال کر کے شہریوں کے لیے کھولنے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے کہا پارک کی کوئی داخلہ فیس نہ رکھی جائے اور مکمل دیکھ بھال کی جائے۔ وکیل نے موقف دیا، دفاعی ادارے کو معاہدے کے تحت پارک دیا گیا تھا، جب KMC مانگے گی واپس کر دیں گے۔ چیف جسٹس نے سوال کیا، آپ کو پارک کمرشل سرگرمیوں کے لیے دیا گیا تھا؟ جسٹس قاضی امین نے کہا آرمی کو تنازعات سے دور رکھیں۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے نسلہ ٹاور کیس میں DG اینٹی کرپشن کو حکم دیا کہ DG SBCA کے خلاف FIR درج کی جائے۔ 1 ہفتے میں انکوائری کر کے رپورٹ جمع کرانے کا حکم۔ DG SBCA کو توہین عدالت کے نوٹس بھی جاری کر دیے۔ کمشنر کراچی کو 15 روز میں نسلہ ٹاور مکمل گرانے کا حکم دیتے ہوئے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کر دی۔ سپریم کورٹ رجسٹری نے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کی غیر مشروط معافی قبول کرتے ہوئے انہیں عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ عدالت نے ایڈمنسٹریٹر کراچی کو عہدے کو سیاست سے دور رکھنے کا حکم دیا۔ سیاسی تعلق سے بالاتر ہو کر ذمہ داری ادا کرنے کی ہدایت کر دی۔ سپریم کورٹ نے مرتضی وہاب کو گٹر باغیچہ کی تمام اراضی پر قبضہ ختم کرا کے پارک بحال کرنے کا حکم دیا۔ جنید شاہ کی رپورٹ۔ سپریم کورٹ نے مرتضی وہاب کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ مرتضی وہاب کی غیر مشروط معافی قبول کرتے ہوئے غیر جانبداری سے کام کرنے کی ہدایت کی۔ گٹر باغیچہ کیس کی سماعت میں بینچ سے تلخ کلامی پر سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے بھرمی کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے مرتضی وہاب کو ایڈمنسٹریٹر کراچی کے عہدے سے ہٹانے کا حکم دیتے ہوئے کہا آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں یا سیاسی رہنما؟ ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سیاست کے لیے نہیں ہوتا۔ کیا کراچی آپ کی ذاتی ملکیت ہے؟ جائیں باغ ابن قاسم ہیل پارک کو اپنے نام پر کرا لیں۔ جتنے پارکس ہیں کراچی میں سب ختم کر دیں۔ مرتضی وہاب نے بینچ کے روبرو غیر مشروط معافی مانگی، تحریری درخواست بھی دی، جسے عدالت نے منظور کرتے ہوئے فیصلہ واپس لے لیا۔ سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مرتضی وہاب نے عدالت کا شکریہ ادا کیا اور کہا ان پر تو ہمیشہ غیر سیاسی ہونے کا الزام عائد کیا جاتا رہا۔ عدالت میرا گھر ہے، عدالت کا میں احترام کرتا ہوں اور عدالت کے سامنے ہمیشہ ریسپیکٹفل طریقے سے ہونا چاہیے۔ اگر میری بات درست تھی تو وہ میں نے اس کے لیے اپولوجائز کیا اینڈ دا کورٹ واز ویری کائنڈ کہ کورٹ نے اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے مجھے موقع دیا کہ جو کراچی کی خدمت کا ذمہ مجھے ملا ہے وہ میں اس طرح جاری ہو سکتا ہوں۔ مرتضی وہاب نے کہا جب تک وہ عہدے پہ رہیں گے کراچی کی عوام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ جنید شاہ، نیو نیوز، کراچی۔ پارک مسجد میں کیسے تبدیل ہو سکتا ہے، کل وضاحت دی جائے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں جھیل پارک اور اطراف میں قبضے سے متعلق کیسز کی سماعت میں استفسار۔ عدالت نے طارق روڈ پارک اراضی سے تمام قبضے ختم کرانے کا حکم دے دیا۔ دکانیں اور دلکشاں کلب کے خلاف بھی فوری کارروائی کی ہدایت دیتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر کراچی کو کل طلب کر لیا۔ مدینہ مسجد انتظامیہ اور اوقاف کو کل کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ منی بجٹ پاکستان اور عوام کی کمر میں خنجر گھونپنے کے مترادف ہے۔ حکومت نے IMF سے مذاکرات افراتفری میں کیے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے 3 سال میں PTI نے ملک کا وہ کباڑہ نہیں کیا جو منی بجٹ سے ہو جائے گا۔ منی بجٹ سے پاکستان کی معیشت بیرونی سہارے کی مرہون منت ہو کر رہ جائے گی۔ شہباز شریف نے مزید کہا پاکستان کو درپیش مسائل کی دلدل سے نکالنے کے لیے 10 سال کی پالیسی تیار کرنا ہوگی۔
चेयरमैन नैब की तैनाती के मामले पर पीपल्स पार्टी, JUIF और नून लीग ने नाम स्टीयरिंग कमेटी में पेश कर दिए। ताहम स्टीयरिंग कमेटी सदर को भेजने के लिए 3 नामों पर अभी तक इत्तफाक नहीं कर सकी। JUIF ने चेयरमैन नैब के लिए जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद खान, मुस्लिम लीग नून ने नासिर सईद खोजा, सलमान सदीक और इरफान कादिर, जबकि पीपल्स पार्टी ने साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी का नाम तजवीज़ किया है। ऑपोजिशन लीडर को 3 नाम सदर को भिजवाने हैं। ऑपोजिशन के नामों के बाद हुकूमत अपने नाम सदर को भिजवाएगी। मजीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर से। जी अली शेर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की जगह लेने के लिए जो अपोजिशन को खत लिखा गया था सदर ममलकत की तरफ से, उस मुशावरत का एक स्टेप ये हुआ है कि अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी के लिए अपोजिशन की जमातों ने मुख्तलिफ नाम दिए हैं। JUI ने दोस्त मोहम्मद खान दिया है जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। मुस्लिम लीग नून ने नासिर सईद खोसा, सलमान सदीक और इरफान कादिर के नाम दिए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ने साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी का नाम दिया है। जराये का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने एक साबिक जज का नाम भी दिया है। इनमें से अपोजिशन ने 3 नामों पे इत्तफाक करके सदर ममलकत को भेजना है और इस पे अभी तक स्टीयरिंग कमेटी में इत्तफाक नहीं हो सका है। और इसका के बारे में कहना है, जराये का ये कहना है कि अगले 1-2 रोज में इस पे अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी में मशावरत होगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अली शेर, इस हवाले से आगाह कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत के लिए नवाज शरीफ डरावना ख्वाब बन चुके हैं। इनकी वापसी की खबरों से ही हुकूमत की हवाइयां उड़ गई। नवाज शरीफ की वापसी इनके मुआलजीन की वापसी से मशरूत है। डरपोक हुकूमत में मुल्क को चलाने की सलाहियत नहीं है। उन्होंने कहा आसिफ जरदारी लाहौर आना चाहते हैं, जरूर आएँ। अवाम तीनों जमातों की कारकर्दगी देख चुके, इंतखाबात में अब कोई इब्हाम नहीं होगा। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी उनके मुआलजीन की इजाज़त से मशरूत है, लेकिन अभी मीडिया में उनकी वापसी की खबरें चली तो हुकूमत के ओसान ख़ता हो गए। जो हुकूमत नवाज शरीफ के खौफ में इस कदर मुब्तला हो कि नवाज शरीफ उनके लिए एक डरावना ख्वाब बना हो, वो हुकूमत पाकिस्तान को क्या चलाएगी। हम अगर असेंबलियों से अपोजिशन के मुश्तरका इस्तीफ़ों के अलावा निकलेंगे तो इस बात का खदशा है कि वो असेंबली से ऐसी कानून साजी न कर लें जिससे पाकिस्तान के आइन की रूह मुतासर हो। जरदारी साहब लाहौर आना चाहते हैं, 100 बिस्मिल्लाह। हमें किसी के लाहौर में आने या किसी के लाहौर से जाने से गर्ज नहीं है। पूरा पाकिस्तान सबका है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को बहाल करने का फैसला सुनाया, अगले ही लम्हे वफाकी हुकूमत 1993 में बहाल हो गई। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना है नवाज शरीफ बीमारी का बहाना करके गए, कोट लखपत जेल उनका इंतजार कर रही है, आकर सजा काटेंगे। नवाज शरीफ की सजा खत्म कराने के लिए लंदन और जाती उम्रा में प्लानिंग हो रही है। उन्होंने कहा हुकूमत ऐसा सिस्टम लाना चाहती है कि एक वोट पर भी शुबा ना हो। सूबे की गवर्नेंस में बेहतरी हुकूमत की तरजीह है, मुल्क की इदारों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, नवाज शरीफ की वापसी पे आप लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो कोई वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं। बीमारी का बहाना बना के एक शख्स गया और बीमारी ऐसी निकली कि ये बीमारी थी लोगों पे कीचड़ उछालने की। आपने देखा कि ये बात सामने आ गई कि राना शमीम का जो बयान हल्फी है वो मरीज़ जो है अपने सामने बैठ के उसका वो साइन करवा रहे हैं। तो ये कोई वर्ल्ड कप जीत के नहीं आ रहे कि उनको हार पहनाने हैं। कानून में लिखा हुआ है, उनका रास्ता जेल है, कोट लखपत जेल इंतज़ार कर रही है। कानून के मुताबिक वो अपनी सज़ा काटेंगे। बड़ी वाज़ेह बात है। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 14वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मरकजी तकरीब घड़ी खुदा बख्श भुट्टो में होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी समेत मरकजी क़यादत जलसे से खिताब करेगी। जालों की बड़ी तादाद जलसागाह में मौजूद है। मजीद जानते हैं घड़ी खुदा बख्श में मौजूद जैन आशिक पठान से। जी जैन, आगाह कीजिएगा। जी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 14वीं बरसी की मरकज़ी तकरीब गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में इस वक्त जारी है। मुल्क भर से जियालों की आमद का सिलसिला भी जो है वो जारी है। मज़ार के अंदर जो है वो इस वक्त भी जियाले जो है वो फातह ख़्वानी करते और फूलों की चादर चढ़ाते दिखाई देते हैं। जबकि जलसे के हवाले से मैं आपको बताऊं कि ठीक 3 बजे के करीब जो है वो जलसे का आगाज़ हो जाएगा, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो जलसे को खिताब करेंगे, जबकि को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी जो है वो शरीक नहीं हो रहे हैं। जबकि मुल्क भर से सूबाई कायद जो है और दीगर अहम रहनुमा जलसे से खिताब करेंगे। जबकि 5:20 पे 1 मिनट की खामोशी के साथ 6 बजे के करीब जलसे का इख्ताम पजीर होगा। जबकि मैं आपको बताऊं कि CC इजलास जो है हर साल नवदरो भुट्टो हाउस में जो है
वो बुलाया जाता है, जबकि गुज़िश्ता साल भी कराची में जो है वो सीसी इजलास तलब किया गया था, जबकि इस साल जो है वो सीसी इजलास तलब नहीं किया गया है। जबकि ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है जनवरी के पहले हफ्ते में सीसी इजलास बुलाया जाएगा। जी, जाड़े ने रंग दिखाया, पहाड़ों पर हुस्न उतराया। मलिका कोहसार ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सवात, अपरदीर, गलियात, नथिया गली, एबटाबाद में भी हर तरफ रुई के गाले गिरते रहे। बाग, रावलाकोट समेत कश्मीर के पहाड़ों ने भी सफ़ेद दोशाला ओढ़ ली। गिलगित बल्तिस्तान भी बर्फबारी जारी है। यकबस्ता हवाएं खून जमाने लगी हैं। जाड़ा रंग दिखाने लगा, पहाड़ों पर रुई के गाले गिरने लगे, बालाई इलाकों में वाइट कारपेट बिछ गया। दीरबाला और मानसहरा में पहाड़ों, दरख्तों, सड़कों पर बिखरी चांदी से हर मंजर सहरंगेज हो गया। बाग, रावलाकोट, छतर प्लेन समेत आजाद कश्मीर के पहाड़ बर्फ से ढक गए। बर्फबारी के मतवालों ने मरी में कयाम बढ़ा लिया। दांत बजाते सयाहों ने भरपूर एंजॉय किया। चलास में हर शय जम गई, जिंदगी का निजाम भी जाम हो गया। यकबस्ता हवाओं से गिलगित बल्तिस्तान की वादियां फ्रीजर बन गई। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटे के दौरान पहाड़ी इलाकों में मजीद बर्फ पड़ने का इम्कान जाहिर कर दिया। कराची में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। ठंडे मौसम में कराची के फूड पॉइंट्स की रौनकें भी बढ़ गई हैं। सड़क किनारे सजे कचौरी के स्टॉल्स पर शहरियों का रश है। मजीद जानते हैं आसिम अशरफ से। जी आसिम, बताइएगा। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद जहां पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, वहीं कराची के जो मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स हैं वहां पर शहरी आकर जो है वो या फिर काम से शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में जो घूम रहे होते हैं वो उन पॉइंट्स का इस वक्त रुख कर रहे हैं। सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स का रुख करके कोई कचौरी खा रहा है, कोई समोसों का लुत्फ उठा रहा है और कोई जो है वो पकौड़ों के साथ इंसाफ कर रहा है। मैं इस वक्त कराची के एक मारूफ सदर में जो है वो कचौरी पॉइंट है वहाँ पर मौजूद हूँ। एक भाई हैं, पूरे भीगे हुए हैं ये, लेकिन कचौरी पॉइंट पर आकर जो है वो इस वक्त क्या ये करना चाह रहा है, इन्हीं से जानते हैं। ट्रेन में सर्दी ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए सर्दी में इजाफा हो चुका है और कचौरी हम इसलिए खा रहे हैं कि बारिश का थोड़ा एंजॉय करने के लिए, तो इसलिए हम एंजॉय कर रहे हैं और मौसम भी ज़रा खुशहाल हो चुका है। कराची वाले एंजॉय करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते हैं और इस तरह के पॉइंट्स को ढूंढते हैं और वहाँ जाकर जो है वो दोस्तों के साथ भरपूर लुत्फ उठाते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क बरी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान तुर्की के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। सकाफती और मजहबी वाबस्तगी पर मबनी पाक तुर्क दो तरफा ताल्लुकात की जड़ें तारीख में इंतहाई गहरी हैं। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में अमन और मुफाहमत के इक़दाम और इंसानी बहरान से बचने के लिए मुखलिस बैनुल-अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। भारत में मजहबी अक्सरियत के नाम पर इंतहा पसंदी फैलाई जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, मोदी सरकार भारत में अक़लियतों से जो नारवा सलूक कर रही है वो किसी से ढका छुपा नहीं। यही वजह है भारत की मईशत और खारजा पॉलिसी तनज़ली का शिकार है। फवाद चौधरी ने कहा, कायद आज़म पाकिस्तान को किसी तौर पर मजहबी रियासत के तौर पर नहीं देखते थे, उन्होंने भारत की सियासत देख कर पाकिस्तान बनाने का फैसला किया। वफाकी वज़ीर ने सानिया सियालकोट को मुल्क के आइन और कानून के मुनाफी करार दिया। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी खातून वजीहा सवाती कत्ल केस की तहकीकात जारी हैं। गिरफ्तार मुलजिमान को मकतूला के पहले शोहर के कत्ल में भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। वजीहा सवाती के पहले शोहर को मई 2014 में पंजाब में कत्ल किया गया था। वजीहा सवाती का रिजवान हबीब से करोड़ों रुपए मालियत के घर का तनाज़ा था। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में ज़ायदुल मियाद स्टंट डालने की तहकीकात में एएमएस स्टोर की गफलत सामने आ गई। दस्तावेज़ात के मुताबिक एएमएस मेडिकल स्टोर ने ना तो ज़ायदुल मियाद स्टंट्स की लिस्ट तैयार की और ना ही स्टोर की इंस्पेक्शन की। कंपनी के साथ स्टंट को तब्दील करने के लिए कोई खत भी नहीं लिखा गया। सोमालिया के सदर मोहम्मद अब्दुल्ला मोहम्मद ने सोमाली वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद हुसैन रोबेल को करप्शन के इल्ज़ामात पर ओहदे से मुअत्तल कर दिया। सोमालिया के सदारती महल की जानिब से जारी बयान के मुताबिक जब तक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ करप्शन की तहकीकात जारी हैं वो अपने ओहदे पर काम नहीं कर सकते। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद फैसले को देखते हुए उनकी दोबारा तैनाती का फैसला किया जाएगा। सोमाली वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद हुसैन रोबेल पर करप्शन और ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जे का इल्ज़ाम है। ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का 8वां दौर ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत वियना में शुरू हो गया है। मुज़ाकरात में ईरान और अमेरिका को 2015 में तय पाने वाले जौहरी मुआहदे में दोबारा वापस लाने की कोशिश की जाएगी। ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान मुज़ाकरात का 7वां दौर 17 दिसंबर को 10 रोज़ के लिए मुलतवी हो गया था।
ब्राज़ील में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। 35,000 अफराद बेघर हो गए। ब्राज़ील की रियासत बाहिया में नवंबर से जारी बारिशों के बायस 18 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। तेज़ बारिशों के बायस 2 डैमों के किनारे टूट गए, जिससे पानी शहरी आबादी में दाखिल हो गया। हुकाम की जानिब से मज़ीद बारिशों की पेशगोई की गई है। सैदपुर इस्लामाबाद का तारीखी गांव है, जहां संस्कृत की पहली यूनिवर्सिटी कायम की गई। अकबर बादशाह के सिपाहसालार मान सिंह ने यहां एक मंदिर तामीर किया था, जो इस खित्ते का तारीखी विरसा बन गया है। मजीद बताएंगी आयशा शुएब। इस्लामाबाद की तामीर से 85 देहात मुतासिर हुए, लेकिन सैदपुर वाहिद गांव आज भी मौजूद है, जिसे मॉडल विलेज का दर्जा हासिल हुआ। सैदपुर का जिक्र हिंदुओं की कदीम कुतब में भी मिलता है। ये है 5,500 साल पहले की बात। तो इसके कॉम्प्लेक्स के तो कई आसार हमें मिलते नहीं हैं, लेकिन ये है कि जो मौजूदा जो हिंदुओं का मंदिर और वहाँ गुरुद्वारा है, शायद इसी जगह पे जो है वो उनका कदीम को कॉम्प्लेक्स हो। सैदपुर में हिंदू बरादरी का एक मंदिर, जिसे जान की देवी के नाम से जाना जाता है, के अलावा एक धर्मशाला भी है। साढ़े दादा पर दादा एक सुन के इधर यूनिवर्सिटी होनी सी बच्चे से पढ़ने से। सैदपुर गांव को 2008 में सियाहती मकाम की हैसियत मिल गई थी, जहां अंदरूने और बैरूने मुल्क से सियाह बड़ी तादाद में आते और यहाँ के माहौल से लुत्फानंदोज होते हैं। पाकिस्तान जहां सीपेक जैसे जदीद मंसूबों के लिए अहमियत का हामिल है, वहीं पर हजारों साल कदीम तहजीब भी रखता है, जिसमें इस्लामाबाद का गांव सैदपुर, जहां पर संस्कृत यूनिवर्सिटी की मौजूदगी के असरात का मिलना भी शामिल है। कैमरामैन सईद कुरैशी के साथ आयशा शुएब, न्यूज़ इस्लामाबाद।